اور ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ گزشتہ روز درگاہ حضرت بل سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی گیٹ کے سر سید گیٹ کے سامنے واقع شاپنگ کمپلیکس میں آگ لگنے سے کافی نقصان ہوا ہے۔ آتشزدگی کی اس واردات میں قریبی گھروں، دکانوں اور کاروباری اداروں کو بے حد مالی نقصان پہنچا ہے۔ آتشزدگی کی اس واردات میں تقریباً نصف درجن رہائشی مکانات خاکستر ہو گئے ہیں۔ گھر خاکستر ہو جانے کے باعث متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے دن گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ افراد نے مرکزی حکومت اور گورنر انتظامیہ سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ سورے حالس مز سٹور ات بنمت تم سٹور مز کیسا اوترم نچ نشن کرمت یہ کی تمس مطلب ورو اونمت سونہ پیوت پان مز تھومت رس رس پینت پینت انت وردن مز تھومت انت سورے گو تھی مز یہ تم پلو تہند وردن سونہ پیوت تہ گو ٹونگر یقہ ان ٹرنگن مز مے رود نا کہین امس نیچی خاطر نہ رود پانس پلو زٹ یہ بیس کھسان یہ پلو زچ تم لگ اس رود نا کہین رود نا اپیل کران سرکارس اس کرو حظ مدد اس کرو حظ مدد کیا بیٹھ خاکس پہ اس رود نا کہین اس بون کن تھومت کہین اس سورے ہور کن تھومت سہ مکلیو سورے اس رود نا کن قسم پلو نا کیا مطلب سن پیوت اگر سن پیوت روزِ ہا توتہِ کٕنہو کینٛہہ کرو سُہ تہِ نہٕ روٗد نہٕ سُہ تہِ حظ مۄکلیو سورُے نہ حظ روٗد نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ بانہٕ ٲسۍ مٔنمٕتۍ یِم چیٖز ترٛام تَتھ حظ گوٚو چانٛگُر تَتھ حظ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ تَتھ حظ اکھ چیٖز نہ حظ روٗد نہٕ مےٚ درٛاو نہٕ تَتہِ تَتھ حظ گوٚو سورُے سوٗر تَتھ حظ بنیو سوٗر سٲرسٕے سامسوتر گوٚوُم سٲرسٕے اَتہِ روٗدُم نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ شُرٮ۪ن چھُم نہٕ زٔٹ یہ مے نٲلۍ چھِ تی یون لُکن نِش خۄدا رسول یون اَسہِ یہِ یون لُکن نِش بس یِتُے چھُ بیٚیہِ چھُم نہٕ کِہیٖنۍ نٮ۪زبٲنۍ چھُم خاندار یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ بولان أمِس اوس تہِ تہِ مۄکلیوُس کیش اوسُس سُہ تہِ دوٚدُس سۄن اوسُس سُہ تہِ دوٚدُس أمِس سورُے أمِس حظ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ حظ چھِ گورمنٹس کران اپیل أمِس کٔرِو مدد أمِس حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ حظ چھُ بِچور نٮ۪صبٲنی حظ چھُ پاور چلان یہِ حظ چھُ دٔنۍ کٲم کران أمۍ حظ اوس لون کوٚڑمُت لونس پٮ۪ٹھ اوسُن یہِ مکان بنومُت أمِس حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ أمِس چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ أمِس چھِ بوڈی نیٚچوٗ سُہ کھوٚت وۄنۍ 10تھس أمِس چھُنہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ نہٕ وادی کشمیر میں روایتی سیب کے باغات کو ہائی ڈینسٹی میں تبدیل کرنے کی مہم میں نجی کمپنیوں کی جانب سے کاشتکاروں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ پیش آیا ہے۔ پلوامہ کے بھرپور علاقے میں غازی احمد شیخ نامی میوہ کاشتکار کو نجی کمپنی کی جانب سے فراہم کیے گئے ہائی ڈینسٹی کے 800 کے قریب سیب کے پودے غیر معیاری نکلے جو کہ کچھ ہی ماہ کے اندر سوکھ گئے۔ گزشتہ سال نجی کمپنی نے کاشتکار کو اکتوبر ماہ میں یہ پودے فراہم کیے تھے لیکن ان میں سے بیشتر پودے سوکھ گئے۔ کاشتکار نے 3 سال قبل اپنے سیب کے روایتی درخت کاٹ کر ان میں ہائی ڈینسٹی کا باغ قائم کرنے کی پہل کی لیکن مذکورہ نجی کمپنی کی دھوکہ دہی سے کاشتکار کو 3 برسوں سے بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ متاثرہ کاشتکار کے علاوہ دیگر کسانوں کی بھی مانگ ہے کہ دھوکہ دہی میں ملوث نجی کمپنی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے یہ پوڈر مجھے دے دیے وہاں سے، میں نے کہا یا مجھے پیسے دے دو واپس یا مجھے مارچ میں پیسے 2022 میں مجھے 2023 میں مجھے پلانٹ دے دو۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو پلانٹ لینے ہیں تو ٹھیک، نہیں لینے ہیں تو ہم آپ کو جبراً گھر بھیج دیں گے یہ پلانٹ، ہمیں کولڈ اسٹور ادھر لاسی پورہ میں خالی کرنا ہے۔ تو میں مجبور ہو گیا پلانٹ لینے کے لیے اور 1 اکتوبر کو جو کہ پلانٹس لگانے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ 1 اکتوبر کو میں نے نہ ادھر پانی کا کوئی سسٹم، نہ ڈرپ سسٹم تھا، نہ ٹرائلس تھا، صرف انہوں نے 15 ستمبر کو مجھے صاف پوڈر دے دیے۔ میں مجبور ہو گیا وہ لگانے کے لیے، وہ بوٹے لگانے کے لیے، اور سب سوکھ گیا۔ 1 لاکھ روپے مجھے اس وقت سکیورٹی پانی تھا، ادھر پانی ہی نہیں تھا کہیں، مجھے 1 لاکھ روپے خرچہ ہو گئے کیونکہ ڈرپ سسٹم جب نہیں تھا جس کے میں نے پیسے ایڈوانس بھیج دیے تھے۔ یت بیت اگر کانٛہہ گروور یژھِ کر مگر ات تسلہ گژھان اَسہِ امہِ سۭتۍ دل گژھان کھٹِتھ، لہذا گژھِ یہ کمپنی کس کیا یمن خلاف گژھِ قانونی کاروٲیی گژھن
नमन बिचारन गई जमींदारन मुआवजे युन पूरा युस जन यमन शूबि मुआवजे दिन तीथन गई मुआवजे हज अदा। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज और तुलेल में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। बांडीपुरा के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नजर इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने के बाद इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को नदी नालों से दूर रखने की तलकीन की है। महकमा मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 21 अप्रैल तक गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ मुकामात पर ज़ालाबारी भी मुमकिन है। 22 से 25 अप्रैल तक मौसम खुश रहने का इम्कान है। कश्मीर के बेशतर इलाकों में कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है और वहीं श्रीनगर में भी बारिश हो रही है। हमारे साथ है मुख्तार अहमद जो कि इंचार्ज डायरेक्टर है मेट डिपार्टमेंट श्रीनगर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे मौसम का क्या कुछ मिजाज रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बारिशें हो रही इसकी पेशनगोई काफ़ी पहले से थी और बिल्कुल 16 से ही मौसम जो है अबरालूद हल्की बारिशों के साथ साथ थंडर स्टॉर्म लाइटिंग ये सारा चल रहा है और आज लेट नाइट से ही जो है मौसम ने और करवट लिया, जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें थ्रू आउट वैली और जम्मू के बेशतर इलाकों में। और यहाँ पे जो हिली एरियाज़ हैं खासकर जो हायर रीज हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के और सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल सोनामार्ग के जो हायर रीज हैं इन सारे एरियाज़ में जो है लाइट स्नोफॉल भी हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इसी पैटर्न का मौसम जो है लगभग 20 तारीख तक रहेगा। अभी जो बारिशें हो रही है इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी खासकर आफ्टरनून के बाद और आज नाइट या लेट नाइट से जो है फिर से जो है बारिशें हो सकती है और कल भी जो है रुक रुक के बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। तो अभी फ़िलहाल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स में इसका ज़्यादा इंटेंसिटी है और ग्रेजुअली ये मूव करेगा साउथ कश्मीर और जो मिडल पार्ट्स हैं खासकर रामबन और डोडा किश्तवाड़ इन सारे एरियाज़ में जो है सिस्टम जो है शिफ्ट होगा कल 19 तारीख को और उसके बाद जो है फिर 20 को भी अबरालूद हल्की बारिशें रह सकती है। 21 को मौसम जो है अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं लेकिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लेट आफ्टरनून में उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एवलांच प्रोन एरियाज जो है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बिल्कुल उसमें भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें जो भी ट्रैवल करते हैं खासकर सोनामार्ग गुमरी और मीनामर्ग एक्सिस में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और एवलांच अभी 1-2 दिन पहले 1-2 वाक़यात हुए उस रोड पे। तो लोगों को बिल्कुल जो कट ऑफ टाइम रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उस कट ऑफ टाइम का पालन करें स्ट्रिक्टली और उसी हिसाब से जो है अपना जर्नी वगैरह प्लान करें। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। खबर भदरवा से है जहां महकमा आर&बी ने भदरवा चंबा बैन रियासती शाहराह पर बर्फ हटाने के काम को तेज कर दिया है ताकि उसे अप्रैल के आखिर तक लोगों के लिए दोबारा खोल दिया जाए। सयाहत की बहाली के लिए काम तेज कर दिया गया है। 7 से 12 फुट तक जमा बर्फ और 7 किलोमीटर खनी टॉप से पडरी स्ट्रीट पर निस्फ दर्जन बर्फानी तोदे के बावजूद महकमा आर&बी ने 52 किलोमीटर सड़क पर बर्फ और मलबा साफ करने के लिए इजाफी अमला और मशीनरी तैनात कर दी है। महकमे के एहलकारों के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते से पहले सड़क को दोबारा खोलने का हदफ मुकर्रर किया गया ताकि एचपी और भदरवा से मशहूर सयाहती मुकाम पडरी मेडू पर सयाहों की आमद को आसान बनाया जा सके। ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक थ्रू हो जाएगी रोड। अभी काम फुल स्विंग में चल रहा है। इसमें मशीनरी हमने एंगेज की, यहाँ पे काम चल रहा है। इसमें टूरिस्ट के लिए थ्रू हो जाएगी। इसमें मशीनरी लगा दी है। आपने देखा होगा रास्ते में 2 मशीनें लगी हुई हैं जो इसका काम रेस्टोरेशन का काम शुरू किया हुआ है और मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या 3rd वीक में या 4th वीक में हम इसको अप्रैल के 4th वीक में हम इसको क्लियर कर देंगे। कितना बाकी है काम जो है रेस्टोरेशन अभी कितना बाकी है? हाँ, इस वक्त हम किलोमीटर 40th में हैं। ये थोड़ा सा हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो 40th किलोमीटर में है जो बहुत ज़्यादा एवलांच प्रोन एरिया है 40th किलोमीटर में है और 42 में भी है 41 में भी है जो जिनको हम रिमूव करेंगे उसके बाद हमारा एरिया थोड़ा टेरेन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो रोड का काम अभी चल रहा है। बर्फ़ भी वहाँ पे स्नोफॉल भी अच्छा हुआ है तो रोड क्लियरेंस का काम भी अभी अच्छा चल रहा है। तो अभी मौसम भी बहुत अच्छा है। तो जम्मू वगैरह तो बहुत गर्मी पड़ रही है तो सोचा हमने कि थोड़ा भदरवा की तरफ घूम लें इन वादियों में। बहुत ही अच्छी वादियाँ हैं ये
और बर्फ़ से तो टोटल घिरी हुई है यहाँ पे, तो अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है इस साल यहाँ पे। बद्री जाना चाहते थे, हमें यहाँ पे आके मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है। हमें चंबा रोड पे जाना था और यहाँ पे कुछ मतलब रोड बंद है, तो हम मतलब यहाँ पे घूमने शूमने आए थे। यहाँ पे अच्छा मौसम, अच्छी जगह है और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते कि जल्दी जल्दी रास्ता खोलें। अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी जगह। बहुत सुना है इधर का, और खासकर पदरी का जो है हमने बहुत सुना है। पदरी में लोग जो हैं आते हैं और एंजॉय करते हैं। अब हम भी आए हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए, लेकिन जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक इनिशिएटिव लिया है आर&बी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जो यहाँ रोड को साफ़ किया जा रहा है, स्नो उठाई जा रही है, क्योंकि बहुत स्नो यहाँ ऊपर पड़ती है, रोड बंद है, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ के टूरिज़्म को बूस्ट और मिलेगा और लोग जो है यहाँ आएंगे, क्योंकि ये एरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रोड, क्योंकि ये जो लखनपुर के बाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का वाहिद एक रास्ता है। और इससे खुलने से यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें भी रोज़गार मिलता है, और क्योंकि भद्रवाह से चंबा तक यहाँ जो है वो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, उनका रोज़गार जो है इससे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस रोड से खुलने से कई बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ के पर्यटन को बहुत बूस्ट मिलेगा। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। महकमे सियाहत ने लद्दाख के लारधू गांव में खुबानी यानी एप्रिकॉट के फूल खिलने के मेले का खास एहतमाम किया। हिल काउंसिल के नायब चेयरमैन सेरिंग आंगचुक, एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए बागबानी गुलाम मेहदी, काउंसलर्स, एसडीएम सासपोल और मुख्तलिफ महकमों के सरबराह इस मौके पर मौजूद रहे। मेले को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहां आए। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेरिंग आंगचुक और ईसी गुलाम मेहदी ने कहा कि लद्दाख के मुख्तलिफ देहात में इस तरह के मेले का इनेकाद मकामी लोगों की मदद करता है। इस तरह के मेले का इनेकाद लद्दाख के हर इलाके में सयाहत को फरोग देने में मदद करता है। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। इतने छोटे छोटे गाँव में इतना आप लोग दूर से आकर हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। और उसके बाद मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ टूरिज्म श्री एडवोकेट ताशी ग्यालसन और एडी टूरिज्म मैडम पालजेज और जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टाफ है उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। इन छोटे गाँव के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम का यहाँ पे इस साल फेस्टिवल रखा है, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। और ये टूरिज्म फेस्टिवल यहाँ बनने के बाद अभी हम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जितने भी गाँव वाले ने अपना हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाया हुआ चमचा हो, बहुत सी चीज़ यहाँ पे एग्जीबिशन में आप सब देख सकते हो, वो सब अच्छे रेट पे अभी बिक्री हो रहा है। और इसी तरह इस गाँव का खासियत ये है यहाँ पे वन ऑफ द डिलीशियस एंड बेस्ट एप्रिकॉट एंड एप्पल्स यहाँ पे उगा जाता है। तो ये इस एरिया के ससपुल ब्लॉक और शाम एरिया में से टॉप गाँव में से एक है जहाँ एप्रिकॉट और ये एप्पल सब होता है। देख पा रहे हैं यहाँ काफी टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में यहाँ ये फेस्टिवल को देखने के लिए आया। तो इसी उत्साह को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा आएंगे, नेक्स्ट ईयर में इससे भी ज़्यादा आएंगे। उम्मीद करता है टूरिज्म डिपार्टमेंट के मदद से इस गाँव को एडॉप्ट करके सिर्फ 10 घर ही है मगर इसमें एप्रिकॉट, एप्पल्स जितने भी यहाँ का इस गाँव का खजाना है उन सबको एक वैल्यू एडिशन में हमें मदद मिले, यही हम उम्मीद करते हैं सर। तेने टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटिल लद्दाख एचोस ने ई गस्तोन बो यूल्यूले नांगाजे सिचे से गुजुक लो सुमने फला चोस्तेनले ई बेकाने गम्यूल थगरिंग संगमाला स्कोरियांग स्कोचला चा फांतोक मांगपोलेब दुगलो ते नांगाजे ई गम्यूल थगरिंग चामशिगी ना थगरिंग नांगाजे स्पोर्ट पा याके तंगचे से पे ई नांगाजे गस्तोन बो गुजुक चोस्तेनले तालोंगाजे ई शाम चोक्स लांगाजे अच्छी तकमाचिक दंगाजे तकमाचिक आने दिरिंगाजे ई लार्दो आइनले तेने थोड़े तारीखी चौकिया दे जाएंगे सस्पोला इन पी इन क्या ताते होंगे जे यहाँ जगह तंचे सोंगले सस्पोला सीचेज इन ये बेकाने मिमांग ला ये फंटो जोंदुगलो इन स्कोरियांग स्ट्राउ काउन ला ग्यूज में ले ये गमिल थगरिंग मुने ना स्कोरियांग yang से प्या मा शांते फंटो जोंदुग जाते गमिल पावने जुरु का साले तो इचोक से तेने कता फंटो जोंजिक से टूरिज्म डिपार्टमेंट लोजुंग इचोक कता जाचे से कता ngaje लोजुंग चोले तालों ngaje युल शुना चोस पिने नानी ngaje युल जिया माने में पिने तालों ngaje सासपोल युल बोत युल चिक चिक थेबा चोस्ते इनले युल शुना चोस्ते ले तेमान ngaje युल जी माने siap dengan nubra yul langis, shamchok yul langis siap pilih naning nekasa. Ma'am, you are Lardu village, so you releasing the festival. How do you like it?
Love it. I've been in other villages for a festival, but first time in Lardo. Okay. Yes. So how do you like it? We just arrived. I like it so much, but I hope to see some more program, some food, local food to try, because I'm very hungry. I'm from Switzerland, and I feel it's very cozy here and beautiful. Yeah. We just arrived, but it feels chill and peaceful, and I like it. We will enjoy it. I think it just started. पुंछ जिले में तैनात सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ गांव करमाडा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के डॉक्टरों और महकमा सेहत के डॉक्टरों ने कई लोगों का मुआयना करने के साथ साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। इलाके के लोगों ने दूर दराज में इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। फायदा होगा कि जिसका बात ही नहीं, कोई समार ही नहीं, कोई नहीं। हमारे लोग कुछ दवाई ला ही नहीं सकते। आप कुछ घर से निकलते नहीं, जाते हैं तो कहीं बाजार से दो चार लाइसेंस लिया होता है बनावटी लोगों ने, उनसे दवाई लेके आ जाते हैं, तो सही मेडिकल डॉक्टर के पास या एमबीबीएस डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते। हमारी आर्मी ने या सीआरपीएफ ने जो कैंप लगाया, इसका हम शुक्रगुजार हैं। वो सबसे ज़्यादा फायदा इसका होगा। फौज की 126 एडी रेजिमेंट की जानिब से अनंतनाग के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर लिटरेसी कैंप इख्तिताम पसीर हुआ। इस कैंप में 43 लड़कियों समेत 64 तलबा ने कंप्यूटर कोर्सेज पे तरबियत हासिल की। इस सिलसिले में ITI अनंतनाग में एक खास तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पर सभी तरबियत याफ्ता तलबा को इसनाद से नवाजा गया। इस मौके पर मुंतजमीन ने जिला इंतजामिया का बेहद शुक्रिया अदा किया और कहा कि फौज कश्मीरी नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रखेगी। नहीं पता था, ये 1 मंथ कोर्स था। अगर हम बाहर कंप्यूटर सीखने जाते तो हमें पे पड़ता 2000-3000, यहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सीखने को मिला। हम थैंक यू करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को और हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे इंस्ट्रक्टर्स को, जिन्होंने हमें अच्छी तरीके से पढ़ाया, हमें अच्छी तरीके से नॉलेज दी। टुडे द वर्ल्ड वी लिव इन इज रैपिडली एडवांसिंग एंड टेक्नोलॉजी is at the forefront of the progress. The ability to navigate and utilize technology has become an essential skill in today's society. And I am thrilled that you are taking the initiative to enhance your computer skills. खबर पुंछ से है, जहां शब कद्र इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर उलमाए कराम ने शब कद्र की अहमियत और फजीलत बयान की और लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तलकीन की। इस दौरान खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर ये बड़ा रहम और करम फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस उम्मत को लैलतुल कदर जैसी अज़ीमुश्शान रात अता फरमाई है, जिसको कुरान करीम ने इस तरह बयान फरमाया है, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहली उम्मतों को लंबी उम्रें अता फरमाई थी, और जब सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उन लोगों की उम्रों को सुनते और उनके बारे में पढ़ते कि उन्होंने पल झपकने की मिकदार के अंदर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, तो इसके ऊपर हसरत और अफसोस करते कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्रें तो कम हैं, हम कैसे उनके बराबर हो सकते हैं या इबादत के अंदर उनसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े के अंदर इस उम्मत को लैलतुल कदर मरहमत अता फरमाई है। मस्जिदुल हसनतुल जमात करगिल में रूह परवर शब कद्र का एहतमाम किया गया। सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शब बेदारी की। मौलाना तस्लीम आरिफ हफीज ने महफिल की सदारत की। इस मौके पर मुल्क कौम के इत्तेहाद और अमन अमान के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। बहरहाल से खबर है, जहां फौज की जानिब से खास इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया।
इफ्तार में बानिहाल के मोअज़्ज़िज़ीन, सियासी और समाजी कारकुनान और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फ़ौज के अफसरों और एहलकारों ने इफ्तार में आने वाले मेहमानों का खैर मक़दम किया। शुरका ने फ़ौज की तरफ से किए जा रहे अवामी दोस्ती के इक़दामात की सराहना की। आज के वक्त में जो इनटॉलरेंस और पोलराइजेशन का जो माहौल है, अगर उस माहौल को हमने काउंटर करना है तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को आर्मी के कैंप्स को विज़िट कराना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी देख रहा था कि आर्मी का जो वर्शिप प्लेस है, एक हॉल के अंदर मैंने गुरु ग्रंथ साहब भी देखी, मैंने मस्जिद का एक पार्ट भी देखा, मस्जिद शरीफ का, मैंने मंदिर का एक पार्ट देखा और मैंने क्रिश्चियन हमारे भाइयों के लिए एक अलग एक स्पेस देखी। और मैं ये समझता हूँ कि इस मैसेज को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के वक्त में, और इस मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। मिलिटेंसी के ज़माने से ही, जब से यहाँ पे आर्मी बैठी है, तब से लेकर आज तक इंडियन आर्मी ने लोगों के साथ जो है आपसी चोली दामन का साथ रखा और इख्तियार पार्टियों का इनेकाद इससे पहले भी होता रहा और हमेशा की तरह इमसाल भी इन्होंने इसका इनेकाद किया। ये एक बाहमी इत्तेफाक, इत्तेहाद और भाईचारे की मिसाल है और इसीलिए इसको मुनक्कद किया जाता है। LGBD शर्मा के लद्दाख दौरे के दौरान कल करगिल में एक खास इफ्तार का एहतमाम किया गया। इसमें चेयरमैन LAHDC, एग्जीक्यूटिव काउंसलर और दीगर को मदऊ किया गया। इस मौके पर LG ने रमजान मुबारक की मुबारकबाद दी और यकीन दिलाया कि वो लद्दाख को बदउनवानी से पाक बनाएंगे और तालीम, सेहत, पानी और रोजगार पर तवज्जो देंगे। You know what Allah Ta'ala gives us. My prayer is, it is always sufficient to live well, to fill our stomach, to drape ourselves, and also feed our children and educate them. And therefore, if we decide, or if we have proclivity that we should have more than what is advised, what is given by the Allah, by the God, and what is given to be given to us by the government as our entitlement. If we decide that we have got to live within that, I think society will become corruption free, and that is what exactly my appeal to is. इदारा-ए औक़ाफ़ इस्लामिया पामपोर की जानिब से पामपोर में गरीब लोगों में कपड़े, जूते और छोटे बच्चों के लिए कपड़े तकसीम किए गए। इदारे के सरपरस्त मोहम्मद मकबूल शाह ने बताया कि इदारा गरीब, मुहताज और मुहलिक बीमारियों में मुब्तला लोगों की हमेशा से मदद करता आया है। उन्होंने कहा कि इदारे की जानिब से एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी कायम है जिसमें गरीब लोगों की मुफ्त टेस्टिंग की जाती है। काम हैं जो गरीब गुरबात के लिए हम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि गुनागो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम मसाकीन, गुरबा और हाजतमंदों तक की हाजत रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपना दस्ते ताउन पेश रखेंगे, आप अपने सदक़ात और ज़कात इदारे औक़ाफ़ के बैतुल माल में जमा कराएंगे। अब इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे स्कूली तलबा जो गरीब घरानों से हैं, हम उनकी तालीमी निगहदाश्त भी खुद ही बैतुल माल से बर्दाश्त करते हैं, चाहे उनका ट्यूशन फ़ी हो, स्कूली अखराजात हो, बुक्स हो वगैरह, वो हम बैतुल माल से ही अदा करते हैं। पिछड़ा डिग्री कॉलेज में आग लगने से लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मकामी कारपेंटर ने मालूमात देते हुए कहा कि डिग्री कॉलेज में रात गए आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कमरे में नस्ब कंप्यूटर भी जल गए। फायर इंजनों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਸਲੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਆਂਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਆਈ 8-10 ਸਾਨੂੰ काल आई है। आज फौरी एक्शन करने आगों पर आए, आगों ही काबू कर लिया। जिस तरीके से मैंने अभी आके देखा डिग्री कॉलेज में ये लगभग कोई 2 करोड़ रुपए का जो लगभग नुकसान जो हो चुका है, इसका मैं जो जिम्मेवार हूँ, जो डिग्री कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको मैं कसूरवार ठहराता हूँ।
क्योंकि जहाँ पर इनके नाइट के लिए जो सिक्योरिटी रखी हुई है, जहाँ नाइट के जो इनके ड्यूटी है, उन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर नाइट ड्यूटी है जहाँ पर 2-2 गार्ड रखे गए हैं तो वो कहाँ थे, वो कहाँ सोए हुए थे। इतना गवर्नमेंट का लॉस हुआ है, गवर्नमेंट का नहीं, ये पब्लिक का लॉस हुआ है, ये पब्लिक का पैसा है उसका जो है। इसके हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इन लोग इसके पीछे जो लोग हैं जिनकी वजह से, जो नालायकी की वजह से हुई है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भगवान परशुराम जयंती के ज़िम्न में डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के ज़ेर इत्माम चाणक्य चौक जम्मू से एक शोभा यात्रा का इनेकाद किया गया। ये शोभा यात्रा जम्मू शहर के कई पुराने बाजारों से गुजरी। यात्रा में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भगवान श्री परशुराम जी के जन्म महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो भव्य रैली है आज ब्राह्मण सभा के बाहर चाणक्य चौक से शुरू होगी और ओल्ड सिटी के अंदर जितने भी बाजार हैं उन सब से होते हुए रघुनाथ बाजार में रघुनाथ मंदिर से माथा टेकते हुए शालामार से दोबारा से पुण्य इसी स्पेस पे, इसी जगह पे आके हम लोग यहाँ पे उसको ख़त्म करेंगे, जिसके बाद एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। भगवान परशुराम भगवान छठे अवतार हैं भगवान विष्णु के, और छठे अवतार होकर उनका नाम पहले राम था, तो परशुराम क्यों उनका नाम पड़ा? क्योंकि शंकर भगवान ने जब उनको परशु जो है दिया, क्यों दिया? क्योंकि असुर इतने हो गए थे, असुरों के नाश के लिए भगवान ने परशु दिया कि जाओ असुरों का नाश करो। तो भगवान जब ब्राह्मण के अवतार में भगवान आए, उन्होंने शत्रुओं का नाश किया, असुरों का नाश किया, तो हमें उस भगवान से यही शिक्षा मिलती है। हमें अपने समाज में रहते हुए जो गलत काम करता है, जो अधर्म की तरफ जाता है, उसके खिलाफ हमें सनातन के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए हुकूमत के मुतादिद इक़दामात के दरमियान वादी के साथ साथ सरसों के तेल के बीजों की काश्तकारी जिला गांदरबल में भी मकबूलियत हासिल कर रही है। महकमा ज़राअत के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक कश्मीर में तेल के बीजों की काश्त की ज़मीन 6000 हेक्टेयर तक पहुँच गई है। 2 सालों के अंदर इस फसल के कुल रकबे में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। पैदावार भी बढ़कर तकरीबन 6000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। तेल की काश्त के लिए मौजूद ज़मीन होने के बावजूद कश्मीर दीगर रियासतों से तेल के बीज का दरामद कुरंता रहा है। ज़मीन और मौसम के मेयार को मद्देनजर रखते हुए जो उसे सरसों के तेल की काश्त के लिए बेहतरीन बनाता है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कश्मीर को खुर्दनी तेल का एक बड़ा प्रोड्यूसर बनाने और उसे किसानों की आमदनी में इजाफा करने का हदफ मुकर्रर किया है। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में 2019-20 में जो एरिया कवरेज जो थी ऑयल सीड के तहत जो एरिया था वो हमारा 2800 हेक्टेयर था, और ये बढ़ता गया। जो हमारी महकमा ज़राअत जो भी हमारे अफसर साहिबान हैं, जो भी फील्ड अफसर हैं, इनकी कोशिशों की वजह से इस साल अल्लाह के फजल करम से और इनकी मेहनत की वजह से ये 6000 हेक्टेयर तक पहुंच गया, 6000 प्लस हेक्टेयर। और इसकी वजह से जो पहले में प्रोडक्शन हुआ करती थी 2735 मीट्रिक टन, इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग इट 6600 मीट्रिक टन। तो माशाल्लाह तो बहुत अच्छी यील्ड है। वो एक्सपेक्ट करें, अपनी फ्लावरिंग का भी मुशाहिदा किया होगा, तो बहुत अच्छा क्रॉप है इंशाल्लाह इस साल। तो ज्यादा हमने इस साल 2800 से 6000 तक पहुंचा है एरिया कवरेज। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने आज जम्मू कश्मीर में G20 सरबराही इजलास के इनेकाद पर एतराज उठाने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान और उसके तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मायूसी का शिकार है। वादी कश्मीर में G20 इजलास के बासानी इनेकाद में रुकावटें पैदा करने की उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। रविंद्र रैना ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन लौट रहा है और यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके आकाओं के तमाम मजमूम अज़ाइम को शिकस्त देने का अहद किया है। ग्रुप के जो मुल्क हैं उनकी एक बड़ी मीटिंग यहाँ मुनक्कद की गई है, इसका हम वेलकम करते हैं। रही बात धमकियों की, ये लश्कर, जैश, हिजबुल, इनका काम ही रहा है खून खराबा करना। इन्होंने बड़ा जुल्म सितम किया है। कश्मीर के लोगों ने इनसे तौबा की। इन्होंने अपनी दुकानें सजा के रखी हैं कश्मीर। इन्होंने तो गरीबों और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। ये कातिल है और कातिल की धमकी से कोई डरने वाला। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।